and welcome to the Nigla Group presents the Tyson Talk Show Season 6, co-powered by Proveda Herbal India, hospitality partner Hotel Pips, beauty partner New Look Unisex Salon, fashion partner Ricky Romin, media partners Arun Bhumi, Spark News, Arunachal West News and MPL News Live. आज हमारे साथ है दो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लेडीज़. One is the reigning Mrs. Arunachal 2024 of the 12th edition, Dr. Chanum Hosai. And also we have the Mrs. Arunachal chairperson and the founder of Muskan Women Foundation, Mrs. Ngurang Anung. आप दोनों को बहुत ही बड़ा स्वागत हमारे टाइसन टॉक शो में. आप दोनों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा. Thank you for inviting us. Thank you so much for coming. I'm very excited to meet and talk to both of you. And आप दोनों ही black में आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं. Yeah, very very beautiful both of you. Thank you so much. So हमारे viewers जो है टाइसन टॉक शो के, क्या उनको आप दोनों प्लीज़ अपने बैकग्राउंड के बारे में something more about yourself. मेरा नाम गुरंग अनु, चेयरपर्सन मिसेस अरुणाचल और मुस्कान वुमेन फाउंडेशन का एक एनजीओ है, वहाँ का हम लोग फाउंडर है. और I am Mrs. Chanum Hosai, reigning Mrs. Arunachal, and I am a dentist by profession, and I'm a mother of a 2-year-old daughter. And yes. मैम, I want to ask you, मिसेस अरुणाचल का जो ट्रॉफ़ी है, जो क्राउन है, उसको जीतने के बाद में आपका so far एक्सपीरियंस कैसा रहा? वैसे बहुत चेंजेस तो नहीं है, but yes, people अभी if I'm going somewhere, some people they do recognize and they do like background में कभी-कभी सुनाई देता है like is that her, so that is something, but it's not like it's so open and about like that. Also I am also at work all the time. I don't really have time to go out and all. तो काम में जाओ तो मुझे just my the colleagues or my assistants and all, वो लोग मुझे बहुत बताते हैं, like they just give me feedback कि they were talking about you like you're Mrs. Arunachal and you're very pretty and all, they gave you compliments. So that really fills my heart and I feel really happy कि इस प्लेटफॉर्म में आने का एक्चुअली मकसद ही यही था, अपने लिए एक नाम, अपना नाम तो कमा ही लेते हैं ना. एंड एज अ वुमेन व्हेन वी मैरी समबडी, हम लोग उन लोगों के नाम के साथ जुड़ जाते हैं, बट वी लूज़ आवर आइडेंटिटी समवेयर. सो वही मेरा एक मोटो था कि एंड आई वांट टू कम हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड अपना एक नाम, अपना एक पहचान हो खुद के लिए भी, एंड जस्ट नॉट माई सरनेम, So yeah, and I think I have accomplished it so far. And everyone is very very proud of you. And I'm sure कि आपका फैमिली भी बहुत प्राउड होगा आपके ऊपर में. And क्योंकि मिसेस अरुणाचल का क्राउन जीतना, it's not a small feat. It's a huge achievement. And मैम, I really appreciate कि जो मैरिड वुमेन के लिए आपने जो प्लेटफॉर्म बनाया है, जो दिया है. तो मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे जो मैरिड वुमेन है जो ये शो देख रहे हैं अभी? जितने भी यहाँ पे मैरिड वुमेन हैं उन लोग से यही कहना चाहेगा, अपने ड्रीम को कंप्रोमाइज़ कीजिए, मत कीजिए. अपने जो सोच है, अपने सपने हैं, उनको उड़ान भरने में हम लोग मदद कर रहे हैं. आप लोग आइए बाहर और हम लोग हमेशा सपोर्ट करेगा. उसी के लिए हमने इतना साल मेहनत किया है. आप लोग के लिए एक प्लेटफॉर्म हम लोग ने क्रिएट किया है जो कि मैरिड वुमेन के लिए स्पेशल. तो हम लोग हमेशा साथ है. अगर आपका अच्छे सोच लेके आएंगे तो हम लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे. Definitely. Ma'am, what about you? Something for all the married women who are watching. I would say that after a marriage, after you're married, and especially after you have a child, you tend to forget about yourself and you focus on only the child and the family. And इसी बीच में हम लोग ना अपने लिए कुछ सोचना, अपने लिए कुछ करना हम भूल जाते हैं without even knowing it. And when somebody tells you something, you're like, okay, for me it's okay, let me do it for them, let me be there for everybody. So when I got this opportunity कि Mrs. Arunachal करो, actually I am also a reigning Mrs. Tirap from our district. So yeah, thank you. So वहाँ पे जब ये हो रहा था first edition, so my family only, they were like, why don't you go and try for yourself, like do something for yourself. And that time it hit me कि like हाँ मेरे लिए भी मैं कुछ कर सकती हूँ. It's just थोड़ा अपने लिए टाइम निकालना है and do something
तो आई डिड दैट एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मिसेस अरुणाचल टीम एज वेल कि यू नो टॉप 20 का फाइनलिस्ट के लिए वी सेलेक्ट यू. सो दैट वाज लाइक एक इनकरेजमेंट उसी में आ गया कि आई एम ऑलरेडी सेलेक्टेड. यू नो मुझे कोई ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं है. सो उसके बाद एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ एंड फैमिली वर ऑल्सो लाइक ठीक है सपोर्टिव, ओके गो डू इट. यू नो वैसे भी अपने स्टेट में ही है तो प्रोफेशनली आई एम डूइंग गुड. बट यू नो एक अपना एक इनर कुछ पैशन भी होता है. एंड व्हेन इस प्लेटफॉर्म में आया एंड द रिस्पॉन्स आई गॉट फ्रॉम पीपल ऑल्सो वॉज रियली ओवरवेलमिंग फॉर मी. तो आई थिंक कि ऐसे अपने खुद को चांस देना चाहिए एज अ मैरिड वुमेन स्पेशली. मिस आप जब मिस होते हो ना यू हैव रियली लाइक आपके पास बहुत सारे चांसेस होते हैं टू प्रूव योर सेल्फ बिकॉज यू डोंट हैव द बैगेज. बट विद मिसेज यू कैरी अ लॉट ऑफ बैगेज इन योर यू नो शोल्डर. तो जब ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है आई फील लाइक एवरी वुमेन शुड यू नो कम अप एंड ग्रैब दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ क्योंकि ये आपके लिए ही एक स्ट्रेंथ बनता है. एंड इट्स लाइक आपका आप कुछ भी काम करने के लिए जाओ आपका ये सरनेम का साथ आपका ये टाइटल रहेगा हमेशा. एंड दैट्स समथिंग आई जस्ट फील लाइक अगर मुझसे भी किसी ने इंस्पायर यू नो इफ़ आई कैन इंस्पायर समबडी इट विल बी अ टिक मार्क ऑन माई अचीवमेंट. सो यू सेड कि आपका फैमिली बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव था एंड इवन आई एम गेसिंग योर हस्बैंड मस्ट बी वेरी सपोर्टिव टू. सो कैन यू टेल मी an incident where you like the most memorable incident for you jahan mein your family was showing you a lot of support? Yes, actually if you talk about my husband, he's a very introverted person. So what happened was family round hota hai na. So he was not agreeing to it and I was like okay I'll take my sister with me and he was just like okay let me just see your rehearsals and he came to the venue. तो मैम ने उसको बोला why are you sitting over there like just come and walk and without any hesitation बेचारा वो आया and he did it in the finals as well. So Family round. yeah family round में because वो बहुत हाँ yeah and he was like I just came to see your rehearsals and मैं कहाँ फंस गया and all. A little bit of bickering but I know he was happy at heart you know and he was feeling proud and my whole family was feeling like they were all live watching it. आपको पता ही है कि ये रात भर का शो होता है. स्टिल दे वर ऑल ऑन देयर मोबाइल फोन्स एंड अ लॉट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स वर ऑल्सो देयर एट द वेन्यू ऑल सपोर्टिव. तो या उससे ज़्यादा क्या Exactly. I mean family का प्यार ही सब कुछ है एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि आपको अपना फैमिली का इतना सपोर्ट मिला है एंड इवन आपको आपका जो मकसद है वुमेन को एम्पावर करना उसमें आपको बहुत सारा सपोर्ट मिला है. सो आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू. मैम हमें जैसे पता है कि मिसेस अरुणाचल मिसेस अरुणाचल में मुस्कान वुमेन फाउंडेशन का भी वो जुड़ा हुआ है, फाउंडेशन जुड़ा हुआ है एंड यू आर द फाउंडर ऑफ मुस्कान वुमेन फाउंडेशन. तो बहुत सारे व्यूवर्स को शायद पता नहीं होगा उसके बारे में. कैन यू प्लीज़ टेल देम कि मुस्कान वुमेन फाउंडेशन है क्या और वो वुमेन को कैसे हेल्प करते हैं? थैंक यू तेंगम ये सवाल पूछने के लिए. एक्चुअली मैं उसे इंडिविजुअली कहीं में आने ही वाला था तो अभी पूछा है. मुस्कान वुमेन फाउंडेशन जो है एक एनजीओ है, स्पेशल वुमेन और चाइल्ड के लिए काम करते हैं. जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट को हम लोग अपलीड करने, जैसे जो मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़े लिखे लोग के लिए तो हम लोग ज़रूरी नहीं, वो ऑलरेडी एम्पावर्ड ना. तो जो ज़्यादा पढ़ा नहीं है, अंडर मैट्रिक अंडर में जो रहता है उन लोग को इनको कुछ करना हो. पहले हमने स्टार्ट किया छोटा छोटा वेंडर खोलने में मदद किया. मैंने बैंकिंग मतलब सिस्टम में लोन दिलाया उनको, लोन लेके सस्टेन करवाया, ऐसे कुछ समथिंग ना. उसके बाद में गर्ल्स चाइल्ड के लिए, गर्ल्स चाइल्ड जो स्कूल अर्लियर जो ड्रॉप आउट हो जाता है उनको हम लोग ये के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजता है. अगर इनको कोई अगर पढ़ने फिर से वापस पढ़ने का मन है तो इनको फिर से हम लोग स्कूल में एडमिशन करा देते हैं. और जिनका टोटली पेरेंट नहीं है, फैमिली माँ भी नहीं है पिताजी नहीं है, इनका 2 बच्चे हम लोग साल में हम लोग ज़्यादा नहीं कर सकते, 2 बेटी को हम लोग एडमिशन के लिए हम लोग एफर्ट मतलब हम लोग का एनजीओ का तरफ से हम लोग मदद करते हैं. अगर आसपास या कोई भी ऐसे केस हो गया तो हम लोग को अगर बताएगा कि ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो हम उनको हम लोग मदद करते हैं. और
ड्रग्स एब्यूज़ का बारे में, और इसके बाद में बहुत सा है हम लोग ग्रीनरी के लिए भी एक एनजीओ है, बहुत सा है हम लोग का सब्जेक्ट। लेकिन मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव तो ये रहेगा कि हम लोग गर्ल्स और वुमेन के लिए है हम लोग, क्योंकि हम लोग पहले सबसे पहले हम लोग एक औरत है, एक माँ है, तो एक बहन है, बेटी है, सबसे पहले अपना औरत को ही हम लोग पहले अपलीट करना चाहें। तो प्रायोरिटी ये में वुमेन को ही रखा है और बेटी को रखा है। बाकी सब के लिए करते हैं, एक एनजीओ है तो सब के लिए है, लेकिन स्पेशल हम लोग इनको ज़्यादातर एडल्ट एजुकेशन हो गया, हम लोग एकेडमी है ऑलरेडी पापू नाला में। तो धीरे धीरे हम लोग और भी आगे मतलब एक अच्छा चीज़ को हम लोग प्रमोशन एडवर्टाइज हम लोग करना स्टार्ट करेगा। अभी तक हम लोग बस चैरिटी कर रहे हैं, साइलेंटली हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों को भी पता नहीं होगा हम लोग एग्जैक्टली करता क्या है। 2014 से हम लोग ये करते आ रहा है, हम लोग का माइलस्टोन लास्ट टाइम एवरी ईयर हम लोग अपना माइलस्टोन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मुस्कान वुमेन फाउंडेशन डे एक 20 सितंबर को हर साल होता है, तो उसमें जब आप लोग आएगा, जब वहाँ पे जो होते हैं उनको पता चलता है कि हम लोग कितना अचीवमेंट मिला। तो उसी अंदर में मिसेस अरुणाचल एक ब्यूटी पेजेंट को भी ऑर्गेनाइज करते हैं। आई थिंक आपका फाउंडेशन और आप एक बहुत ही ज़्यादा नोबल काम कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी प्राउड कि ऐसा सपोर्ट करने के लिए आप है, वुमेन को सपोर्ट करने के लिए आप है, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। एंड दिल से मेरा अंदर में दिल से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है। एंड बात ये है कि औरत का दर्द औरत ही समझता है, बोलते हैं। हाँ, यस। सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, एंड नॉट जस्ट फॉर ब्यूटी पेजेंट पर्पस बट फॉर ओवरऑल वुमेन। सो मैम, एज वी नो कि पेजेंट में पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इट्स वेरी चैलेंजिंग, इट्स नॉट सो ब्राइट, नॉट सो शाइनी एज इट सीन। सो आपका ऐसा कुछ चैलेंजेस जो आपने फेस किया ड्यूरिंग योर जर्नी एज मिसेस अरुणाचल? I am not based on it like here in Itanagar. So मेरा जो place है, it's 9 hours from here. So I had to actually travel back and forth with my baby. That was really challenging. That was the actual challenge that I think I faced, because other than that, all other fellow contestants, they were all really good, and you know, a sisterhood एक जो बोलते हैं ना, it was that kind of a thing. So वहाँ से तो कुछ problem नहीं है, and it's not like we are doing it for 24 hours के लिए हम लोग rehearsals कर रहे हैं, वो नहीं था। But yes, अपना बेबी, एक छोटा सा बेबी को you have to travel and bring her here, then उसको leave her and go to do all these things, and then go back tired. Still you have to be there for the family, you know. So that was really challenging. Also, एक होता है ना, like after a while, even your family is like, okay, is it too much? You know, they start questioning. I'm just being honest. They were supportive, but एक तो step back some people will take, you know, but आपको you have to fight for yourself, that's all. And because you know you're not gonna do something bad, you're doing something for you and for the family. So that was just the motive of it. And जो भी परेशानी था वो, I feel like एक किसी कुछ अचीव करने के लिए आपको वो एक जर्नी से जाना ज़रूरी है, टू अंडरस्टैंड हाउ मच इट्स वर्थ, यू नो। सो या चैलेंजेस इतना ही था, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं एंड था। कुडोस टू यू। आई डोंट थिंक कि बहुत इजी है। एंड 2-year-old डॉटर जिसका ग्रोइंग एज, लाइक इनिशियल ग्रोइंग एज में एक माँ का साथ होना बहुत ज़रूरत है, एंड द वे यू हैंडल एंड ऑल्सो वॉन द क्राउन, कुडोस टू यू। रियली अप्रिशिएट. So on this note, we are going to take our Nigla coffee break, and let's watch our sponsors ad.
पूछना चाहेगा कि जो मैरिड वुमेन का ये जो प्लेटफॉर्म है उसको लेके पब्लिक का क्या राय है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उनका तरफ से रिस्पॉन्स क्या है? पब्लिक कुछ लोग हैं बहुत रिस्पॉन्स अच्छा लेता है, और आप देखिए 2018 से लेके अभी 2024 तक मिसेस अरुणाचल अगर ऑर्गेनाइज कर पा रहा है तो बिकॉज ऑफ स्पॉन्सर्स ना। ये स्पॉन्सर्स बताता है कि पब्लिक बहुत हम लोग को मतलब रिस्पॉन्स अच्छा दे रहा है, और एक प्लस पॉइंट भी होता है और ये प्लस ये भी है। और कुछ लोग ऐसे है कि मतलब यूजली 20-30% लोग हैं जो मैरिड वुमेन प्लेटफॉर्म को कोई भी मतलब इनकरेज नहीं करता है। वो लोग कहता है कि मैरिड वुमेन है, घर में थाली बर्तन धो के बैठना है, क्या ज़रूरी है मिसेस अरुणाचल कॉन्टेस्ट। इवन वुमेन फोक भी ना, कुछ कुछ औरतें हैं जो हम लोग को ये करते हैं, डिस्करेज करते हैं, और कोई कोई मेल फोक है। तो यूजली मतलब 30-40% है जो कुछ लोग। और स्टार्टिंग में तो बहुत तकलीफ़ हुआ था, स्टार्टिंग में इसको एक्सेप्ट करना बहुत तकलीफ़ हुआ है। जब मैरिड वुमेन का जब फर्स्ट हम लोग ऑर्गेनाइज करते समय से इतना तकलीफ प्रॉब्लम पेश उस समय में तो मतलब कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था। ये वुमेन है ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज करना, एक मैरिड वुमेन, मेरा बीबी कैसे छोटा छोटा कपड़ा पहन के वहाँ स्टेज पे चलेगा, मेरा बीबी क्यों वहाँ पे मतलब इतना ये करेगा। बहुत सा मर्द ने अपोज किया और औरत भी बहुत अपोज किया। धीरे धीरे हमने उनको बताया ये एक क्लोज क्लासरूम है, यहाँ पे हम लोग स्किन शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक अच्छा माँ कैसे होना है एक अपने बच्चे के लिए ना। अगर माँ अच्छा से लेगा, अच्छा से ट्रेनिंग लेगा तभी जाके बच्चा को सिखा पाएगा। और एक अच्छा वाइफ कैसे होना है, ये सब चीज़ हम लोग का रिसोर्स पर्सन लोग आके बताता है। तो एक औरत जब एक वुमेन ग्रुप में रहता है तो एक दूसरे को एक्सपीरियंस शेयर करता है, अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आता है, जितना डिस्ट्रिक्ट से आता है अपना अपना अलग अलग इंडिविजुअल मतलब एक्सपीरियंस होता है। एक डिस्ट्रिक्ट का अंजाव का डिस्ट्रिक्ट वहाँ का एक्सपीरियंस अलग है, तवांग का अलग है, इसके बाद में जीरो का अलग है। तो जितना वो डिस्ट्रिक्ट से कंटेस्टेंट लोग आते हैं, जब वो लोग एक साथ में बैठते हैं तो तब अपने एक्सपीरियंस और वहाँ का ट्रेडिशनल अपना कल्चर को एक्सचेंज करते हैं। तो मेन वही था। तो अरुणाचल का जितना वुमेन कम्युनिटी को वन अम्ब्रेला में लाना है, ये मेरा मकसद है सबसे पहले। और सेकंड जो है एक अपना कल्चर एक्सचेंज, जैसे कि हम लोग एक दूसरे को जब भी आप देखिए ग्रैंड फिनाले में हम लोग ये लॉटरी उतारता है ड्रेस को। कोई भी ट्राइब्स हो, जैसे कि आप एग्जाम्पल पकड़ लो कि आप गलो है, आपका गलो को आप ही पहनेगा ऐसा नहीं है, हम निशी है हम पहनेगा, हम अपातनी है हम पहनेगा, मतलब कल्चर एक्सचेंज कर रहे एक दूसरे को। ऐसे होके हम लोग ने स्टार्ट किया तो आज हो गया। तो पब्लिक लोग कुछ लोग ने बहुत हम लोग को या गवर्नमेंट बोलने से भी स्टार्टिंग में हम लोग को बहुत डिफ्राइव किया। तो हमारा ऑनरेबल सीएम सर, उन्होंने एक मदर को, एक वुमेन फोक को उनको भी उनका सोच में ये आया कि यूथ लोग का है ना, यूथ को अगर हम इतना प्रमोट कर रहे हैं, स्पोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, मैरिड वुमेन को भी क्यों प्रमोट नहीं करेगा ना। ऐसे सोच, उसका सोच बहुत अच्छा है। तो इसलिए ऑनरेबल सीएम सर ने कहा कि मैरिड वुमेन को भी एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। तो उन्होंने लास्ट 2024 का जनवरी 16 में सबने मिलके कैबिनेट में पास कर दिया। और ये लेकिन ये जर्नी बहुत लॉन्ग था, मतलब 2018 से लेके 2024 को ही कैलेंडर इवेंट मिला है, और बाकी लोग को तो 2 साल में मिला है, 3 साल में मिला है। लेकिन आपको 6 years का बहुत चैलेंज फेस करना पड़ा है यहाँ पे। अभी तो आई थिंक बोथ ऑफ यू मस्ट बी रियली हैप्पी कि ऐसा हो गया, आपको स्टेट कैलेंडर इवेंट का एक जो मिल गया है आपको। आई थिंक एज यू सेड कि गवर्नमेंट शुड ऑल्सो एनकरेज वुमेन। अगर जब औरतों को, स्पेशली मैरिड वुमेन ना, अगर उनको जितना एनकरेज करेगा, दे विल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन ऑल्सो।
एंड मैम आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क कि बहुत सारा लोग अभी से सोच रहे, दे आर एंटिसिपेटिंग, सब लोग सोच रहे हैं कि मिसेस अरुणाचल का न्यू एडिशन कब होने वाला है। मैम आप प्लीज़ आप दोनों बताएंगे हमारे व्यूवर्स को। न्यू एडिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन ऑडिशन अभी दे रहा है और ऑनलाइन ऑडिशन ये 30 तक ही होगा, उसके बाद ऑफलाइन का आपको पेज पे फॉलो करना होगा। और बाकी जो है ऑलरेडी कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है और जितना डिस्ट्रिक्ट से अभी आ रहा है और कम्प्लीटली नहीं हुआ है अभी तक, तो हम लोग न्यू सीजन स्टार्ट कर चुके हैं। अभी ग्रैंड फिनाले हम लोग दिसंबर तक को करने का हम लोग प्लान है। व्हाट अबाउट क्राइटेरिया मैम, क्या क्राइटेरिया है मिसेस अरुणाचल का? मिसेस अरुणाचल के क्राइटेरिया जो जैसे ही हर साल जैसे होता है, जैसे एज क्राइटेरिया यही रहेगा कि 25 to 60 ईयर्स, उसके बाद में उनको सिंगल वाइफ होना पड़ेगा और टोटली अगेंस्ट पॉलीगैमी। उसी के लिए लोग बहुत मुझे खराब भी पाते होंगे और अच्छा पाने वाला भी है, लेकिन हमें सोसाइटी का साथ चलना चाहिए। तो अगर हम एक वुमेन फोक को अगर एक रिप्रेजेंट करता है तो मुझे उनका बेनिफिट के लिए भी सोचना पड़ेगा। तो हम आने वाला बहनों के लिए, आने वाला फ्यूचर के लिए हम लोग कर रहे हैं। किसी से भी इंडिविजुअल हम लोग दुश्मनी नहीं है, जो पॉलीगैमर्स लोग हैं उनको, जो हमको जो मेरा सोसाइटी एलो करता है उसी चीज़ को मैं भी उसमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मेरा भी बेटी है, बहन है, मेरा दीदी है, मेरा कज़न है, सब है, सबके लिए हमको भी सोचना पड़ेगा। तो अभी 20 से पहले हम लोग ग्रैंड फिनाले होगा, उसके बाद हम लोग पेज पे पूरा डिटेल दिया जाएगा जैसे कि बोला है। और मुस्कान वुमेन फाउंडेशन जो है एक हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस का केस के लिए भी हम लोग ये करता है, शेल्टर होम दे रहा है। अगर कोई भी ऐसे प्रॉब्लम होने से हम लोग को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। हम रात का 2 बजे हो या 3 बजे हम लोग हमेशा रेडी रहता है, हम लोग हमेशा रेडी पार्टी है। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग उसको दे रहे हैं, क्योंकि आजकल ये पॉलीगैमी का वजह से हर घर में ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज हम लोग उस टॉपिक में बात नहीं करेगा, लेकिन कभी दिन हम लोग ये टाइम मिलेगा तो हम उसके बारे में बात करें। आज तो हम लोग को अनाउंस करना है, मिसेस अरुणाचल 13 एडिशन ऑलमोस्ट हम लोग ये कर चुका है। और ये जर्नी का बारे में कुछ हम बताना चाहेगा। 2018 में मिसेस अरुणाचल को हम लोग स्टार्ट किया, उससे पहले बहुत सारा लोग ऑर्गेनाइज़ किया है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र नहीं था। किसी ने एक साल 2005 से स्टार्ट किया है, मिसेस अरुणाचल 2005 से स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट विनर था तिशी रश्मि ना, तो उसके बाद में फिर किसी ने ऑर्गेनाइज़ किया, फिर डिफंग हो गया, फिर मतलब ऐसे करते करते 6th एडिशन चला गया था। तो 6th एडिशन का बाद में तो 7th एडिशन को हम लोग मुस्कान वुमेन फाउंडेशन ने स्टार्ट किया। तब से कंटिन्यूसली एक साल भी हम लोग ने नहीं रुका है, गैप नहीं रखा है, हर साल मतलब ऑर्गेनाइज़ किया। तो जब मुस्कान वुमेन फाउंडेशन जब से मिसेस अरुणाचल को ऑर्गेनाइज़ किया है, तब से जो इंटरनेशनल के लिए मिसेस संगीत होंगल हम लोग ने फर्स्ट इंटरनेशनल भेजा है। मिसेस इंडिया में उन्होंने फर्स्ट रनर अप मिला, इसके बाद में मिसेस एशिया इंटरनेशनल उन्होंने 2022 को गया, तो सब टाइटल मिला है, मिसेस पॉपुलरिटी और मिसेस एनर्जेटिक। तो उसके बाद अभी हम लोग कंटिन्यूसली नेशनल इंटरनेशनल के अभी इंटरनेशनल के लिए प्रिपरेशन चल रहा है। मिसेस कोच बाया ऐसी भी इंटरनेशनल एशिया इंटरनेशनल में जा रहा है, और अन्या न्योकिर तमिन भी मिसेस आर्ट में जा रहा है, वो स्पेन में हो रहा है इस बार। तो 2 कंटेस्टेंट अभी जो विनर है वो उन लोग जा रहे हैं बाहर में, और बाकी ये लोग पार्टनर उनको भी देखा बाद में देख लेगा। जहाँ पे नेशनल से फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। तो पहले नेशनल का जो विनर बनेगा वही इंटरनेशनल में जाएगा। तो ये ऐसे हो गया 2018 से लेके अभी 2024 तक का हम लोग जर्नी। तो बहुत हॉरिबल था, मतलब बहुत तकलीफ, बहुत सा प्रॉब्लम, फाइनेंशियली मेंटली बहुत प्रॉब्लम फेस किया हम लोग ने। तो
ये हम लोग का सीएम ऑनरेबल सीएम सर जो है यंग यूथ सीएम है, इसलिए उनका जो सोच का वजह से आज पॉसिबल हुआ। अगर वो नहीं होता तो आज भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैरिड वुमेन के लिए लोग बोलते तो है ना, लेकिन मतलब मैरिड वुमेन लोग माँ है वो है, वुमेन एम्पावरमेंट का बारे में बात करता है, लेकिन जब ज़रूरत होता है उस समय में मैरिड वुमेन को साइड लाइन कर देता है। मतलब यूजुअली ऐसे ही है, हर जगह में ऑफिस में जाओ, हमने देखा है 6 साल मैंने सेक्रेटरीट में करता है विदाउट सैलरी। रोज़ में सुबह हर 9 बजे को निकलता है घर और यूथ ऑफिस, ऐसे करके बहुत सा हम लोग ने स्ट्रगल किया ये कैलेंडर इवेंट को मिलने के लिए। तो कैलेंडर इवेंट मेरा लिए परमानेंट नहीं है। मैं ये मिसेस अरुणाचल का चेयरपर्सन हमेशा परमानेंट नहीं रहेगा, कभी ना कभी मुझे भी छोड़ना होगा, ये मेरा परमानेंट चेयर नहीं है। लेकिन मैंने वो मैरिड वुमेन के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। वो अभी इजीली आराम से आके, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लोग भी है, अच्छे से एकोमोडेशन मिलेगा उनको, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। जो अगर हम लोग का पास फंड अवेलेबल होगा तो हम लोग इजीली अच्छा से मतलब ऑर्गेनाइज कर सकता है। सिर्फ मिसेस अरुणाचल ब्यूटी पेजेंट सिर्फ ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, इससे और भी है, जैसे कि मुस्कान वुमेन फाउंडेशन का फाउंडेशन डे में फिर हम लोग अचीवर्स लोग को अवार्ड देता है। हर वो औरत को हर अलग अलग फील्ड से जो भी अचीव करता है उनको हम लोग वहाँ पे फेलिशिएट करता है। तो यही जो है, जैसे कि गवर्नमेंट कैलेंडर इवेंट का जो हम लोग को फंड देता है, वो सब चीज़ में हम लोग यूज़ करेगा। और कुछ गर्ल्स, अगर लड़की बच्चा आगे पढ़ना चाहता है या आगे कुछ करना चाहता है, तो अगर उससे हम लोग का तरफ से अगर फ़ंड अवेलेबल होगा तो उसी से भी हम लोग, ये फ़ंड जो है हम लोग वुमेन का एक्टिविटीज़ के लिए ही है। तो उसी के लिए हम लोग ने, अगर वुमेन एक प्लेटफॉर्म में करा रहता है तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर इनका पास पैसा ना भी हो, इनको अगर सपना है मिसेस अरुणाचल बनने का, तो यहाँ पे पहले क्या होता था, रजिस्ट्रेशन फ़ी लेता है, टिकट सेल करना पड़ता है, क्योंकि आपको एक सेलिब्रिटी बुलाएगा तो एक सेलिब्रिटी के लिए तो आपको तो टिकट सेल करना होगा, और हमको एक ऑर्गेनाइज़ करना है तो टिकट सेल करके वहीं से हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ता था। तो अभी ऐसा नहीं होगा। जैसे कि गवर्नमेंट हम लोग को जो फ़ंड दिया है उसी से हम लोग आराम से ये सेलिब्रेट कर सकते हैं वुमेनहुड का, मदरहुड का। तो यही एक मतलब अच्छा है कि हम लोग का प्लस पॉइंट है कि सीएम सर ने हम लोग को ये कैलेंडर इवेंट का आज डिक्लेरेशन करके हम हर वो माँ के लिए, हर वो बेटी के लिए मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। तो कल को मैं ना भी रहूँ, ये प्लेटफॉर्म हमेशा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना मेहनत करके एंड फाइनली मिसेस अरुणाचल को स्टेट कैलेंडर इवेंट का टैग मिल गया, एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर टीम। एंड आई होप कि आगे जाके जितना भी जो व्यूवर्स है, स्पेशली मैरिड वुमेन, आपकी तरह स्ट्रॉन्ग रहे। आई रियली होप फॉर दैट। एंड जैसे पहले भी मैंने कहा था कि आपके वजह से अभी जो मिसेस अरुणाचल का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका रास्ता खुल गया है। द फ्यूचर इज़ इन सेफ हैंड्स। उनको बिल्कुल चिंता करने का ज़रूरत ही नहीं होगा, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ यू। Ma'am, I want to ask you, since we have seen all our previous Mrs. Arunachal representing our state in national and international platform, ma'am, आपका क्या है future plans? We are discussing about it. मैम के साथ भी डिस्कशन हो रहा है कि which platform to go, and Mrs. India में भी बहुत सारे platforms है ना, so which one will be better for me and all, but it's still in the process. अभी हम just बिकॉज उसके लिए प्रिपरेशन बहुत चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अ स्टेट, इट्स लाइक अ कंट्री का रिप्रेजेंटेशन है, तो बहुत सारा प्रिपरेशन भी चाहिए। सो अभी जस्ट बातचीत चल रहा है, लेट्स सी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे हमारे स्टेट को, आई नो दैट यू विल डू इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। एंड यू आर सो ब्यूटीफुल, सो वेल स्पोकन, सो डाउन टू अर्थ, एंड यू नो व्हेन आई सॉ यू फर्स्ट टाइम इन द स्टूडियो, आई वाज लाइक bedazzled, my eyes were bedazzled, so pretty, इतना सुंदर। So I really give my best wishes to you for the future endeavors. And ये सवाल आप दोनों को पूछना चाहेगा हम, आप दोनों का ब्यूटी मंत्रा क्या है? मेरे लिए तो ब्यूटी मंत्र डाउन टू द अर्थ होना है, और आप हम्बल होना है,
जो भी इंसान फेस से हमको ब्यूटी मतलब उससे कुछ मैटर नहीं करता है, लेकिन जो दिल से अच्छा होता है, डाउन टू द अर्थ, मतलब किसी के लिए आगे हमेशा खड़ा रहता है मदद करने के लिए, मुझे उस इंसान को बहुत मतलब खूबसूरत लगता है। इसलिए तो मेरा मानना है ब्यूटी मंत्रा तो हमको हम्बल और डाउन टू द अर्थ पर्सन को ही हम ब्यूटी मंत्रा ऐसे समझते हैं। मैं खुद भी ऐसे ही हूँ। I think for me, beauty mantra would be positivity of a person that you radiate and gratitude. आप अपना आपको हमेशा humble रखो and always be grateful to everybody, and आप अगर खुश हो तो you automatically आपका environment खुश रहता है. When you are in a bad mood, आप भी पूरा सब साथ में जो भी है सब लोग का mood भी ख़राब हो जाता है. तो आप just be positive, no? Positivity is the main thing. I feel like it will make you glow from inside. That's what I believe. Absolutely true. Very, very true. We should always be positive. Always. Since we are almost at the end of our today's episode, आप दोनों टाइसन टॉक शो के जो व्यूवर्स हैं उनको आप दोनों की तरफ से एक मैसेज देना चाहेंगे? और जाते जाते और सबसे पहले टाइसन टॉक में आने मिला है सबसे बड़ा, आज बहुत फेवरेज मतलब ये हो रहा है कि ऐसे इतना बड़ा टाइसन टॉक शो में हम लोग को बुलाया, उसके बाद हमेशा डाउन टू दी अर्थ रही है, व्यूअर्स को ये कहना चाहेगा, और चाहे हालत कैसे भी हो जैसे भी हो उसमें जीने के लिए खुद को ढलना चाहिए। Thank you so much for inviting. Obviously, yes, this talk show is the talk of the town. I feel everybody knows this. When I told my parents and my in-laws and my husband, like they called us and they were like, "Oh, that show, okay, yeah, we know about that." So they were also really excited. And yes, यहाँ आके भी मैं बहुत खुश हूँ. It was like a very friendly conversation. I didn't feel like it was like an interview or some sort. तो बहुत ही अच्छा है. And yes, to all the viewers मैं यही बोलना चाहती हूँ कि to all the women actually and their husbands to please support, क्योंकि एक वुमेन का लाइफ यू नो आफ्टर मैरिज, जैसे मैंने पहले भी बोला, ये बहुत ही अपने आप को हम भूल जाते हैं. तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि एक हस्बैंड उसके साथ रहे, उसको सपोर्ट करे, ताकि शी ऑल्सो यू नो गेट्स हर टाइम. एंड एक मी टाइम भी होना भी बहुत ज़रूरी है. तो स्पेशली टू हस्बैंड्स टू अंडरस्टैंड देयर वुमेन एंड देयर वाइफ, or when their husband, the support partner is there, I feel like we can conquer everything, you know, all the challenges, all the difficulties. So please support your wife. And yes, हमारे जो टाइसन टॉक शो की जो फैमिली है उनके तरफ से आप दोनों के लिए छोटा सा टोकन ऑफ लव thank you so for you and one for you. Thank you so much. Please have a seat. Thank you so much कि आप दोनों आए. And as I said earlier, ma'am, big respect for you for what you're doing for women. And ma'am, all the very best. अभी आपका जो भी future plan होगा, I know you will shine. All the very best. And also congratulations, finally state calendar event बन गया. And all the very best for the new edition, the 13th edition of Mrs. Arunachal. So that was the end of our today's episode. We'll see you next time.